बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज के दिन के दूसरे सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो there are many ways in which a telemedicine setup can be formed, and different entities can engage with each other. This is a typical set. और इसके अलावा अगर आप देखें कुछ और पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नो ए टाइम इन विच फूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमने भी फूड साइंस का प्रोग्राम शुरू किया है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट कैन सेट अप एक पुराना सेटअप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हैव ए जिम, and that gym can be linked with a service, a food service. Through a setup which is, let's say, tele इसको कोई टेली जिम कह सकते हैं, हेल्थ कह सकते हैं। सो नाम अभी हम इसको कोई नहीं देते। लेट्स से इट इज़ ए सर्विस, XYZ सर्विस। और जो भी जिम में आता है तो उसको ऑप्शनली एक सर्विस दी जाती है कि बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्टर, जो कि उसको प्राइमरली उसकी फिजिकल कंडीशंस और उसने अभी तक जितनी एक्सरसाइज की है या कितने अरसे से वो आ रहा है, कैन सजेस्ट ए फूड। Let's say the offering, there are multiple offerings, 1 to, let's say, 10 offerings are available for those persons which come to the gym. So the instructor can primarily prescribe or guide to the athletic कि जो है वो इसमें से कौन सा एक, लेट्स से सी है, एक ऐसा फूड है जिसको वो किसी को एक को प्रिस्क्राइब कर दो। तो आप सी फूड जो है ना, वो ये सी वाला फूड जो है, ये वाला आप यूज़ कर दो या ऑर्डर कर दो, तो वो कैन ऑर्डर इमीडिएटली। और जब वो अपना जो वर्कआउट है वो कर लेता है, देन इट कैन कम द फूड। The second thing is because the health conscious people are around us. So it is possible that someone is interested in, let's say, uh, let's say, yoga, for example. Someone interested in aerobics, for example. So we can link these areas, yeah, these type of facilities through through some health service or a network of health services, uh, which primarily provide different type of services to these health conscious people. ठीक है, पहले तो हेल्थ अवेयरनेस जनरेट करनी होगी, उसके बाद बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ द डे, जो है लोगों को ऐसी एक्सरसाइजेस या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। जो नहीं कर रहे वो उनको ऑब्वियसली सोचना चाहिए देयर शुड बी सम टाइम जो कि हमें एक्सरसाइजेस जो है उनको के ऊपर जो है वर्कआउट के ऊपर करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज। और इवन आप देखें कि इसमें there is a provision of other services as well. जैसे healthcare services हैं, they may have a link to some services like
जो stores. These stores may be sports, जो sports and sports की services वो provide करते हैं. They may have a different type of, for example, food item ingredients जो कि primarily health services को required होते हैं, and then they can actually after making that particular item in a finished product can service to those persons which are engaged in yoga and aerobics type of things. So similarly, you can see any physical activity based setup can be linked to a healthcare service. एक छोटी सी एग्जांपल और देना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे. मेरे ख्याल में इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं चाहूँगा आप लोग भी इसमें डिस्कस करें. Okay, we have a small office, and this office have about 10 persons, and we are also interested to, for example, insurance, health insurance. अब आपने देखा होगा कि if there is a individual person अगर health insurance की तरफ जाता है, तो उस सूरत में it has to pay the maximum or more premium. लेकिन if there is a group based plan, टेली प्लान कह लें आप इसको, insurance plan. If a group based plan can be primarily agreed between health insurance company and obviously with the organization, then it can be a cheaper plan. यानी इसमें जो है वो the persons can have very less deduction in their salaries to primarily maintain a health insurance जो engagement है. और उसके बाद obviously there is a hospital or medical services which are primarily engagement with the healthcare, so that if anything happens to, then the health medical service can be availed through this facility depending upon the plan. So this is also a way of establishing a tele medicine service through the health insurance and through a small company, जिसमें फिर वो क्लेम कर सकते हैं कि we are primarily health conscious and we take care of our persons in their health as well. और ये करना ही होता है बिकॉज जो लॉज होते हैं वो इस चीज़ को इन्फोर्स करते हैं. आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट ओवर हेयर, बट एनी हो, अगर स्टूडेंट्स में से किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पूछ सकता है. जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं एमन फातिमा, अगर आप या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? ओके, अरूज से बात नहीं हुई. अरूज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं? जी सर. ओके, आपकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन बहरहाल नहीं हो, अगर माइक के साथ कोई प्रॉब्लम है यू कैन टाइप इन द चैट एज वेल. जी, ओके, नो वी आर मूविंग अहेड. अब हम आगे जाना चाहेंगे इससे. Now this is the figure 1.5, a simple network connection from the human body to the outside world. इसमें अगर हम देखें तो there is a body area network. So a body area network which consists of an array of biosensors which are attached to the body, and all sensors are connected to the console. कंसोल आमतौर पर डिस्प्ले को कहते हैं. जहाँ उन सेंसर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो रही होती है. सो दिस इज बॉडी एरिया नेटवर्क, a small network which is created
in very at the body of the patient. Then there is one thing which is called the local area network, which is a primarily hospital network and also we can say campus network. जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हम अपना वायरलेस ऑन कर देते हैं वाईफाई, और वाईफाई से फिर हम जो है वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे वायरलेस चैनल होता है, लेकिन कहीं पे वायर्ड चैनल भी हो सकता है एंड दिस इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। अगर हम टेली मेडिसिन की बात करें तो यूजुअली द कनेक्शन इज थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल्सो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर एंड दैट कंप्यूटर कैन बी ए होम कंप्यूटर एज वेल। अगर ये पेशेंट जो है इसकी जो लोकेशन है वो हॉस्पिटल नहीं है, होम पेशेंट है, so the patient is in home, so it can be a personal computer, it can be a mobile phone as well, mobile device। जिसमें जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की गई हो जो कि बता रही हो कि ये पेशेंट इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है या इस पेशेंट की कंडीशन इस वक्त नॉर्मल नहीं है। आमतौर पे वाईफाई राउटर इज यूज्ड टू क्रिएट ए लोकल एरिया नेटवर्क और इसका कनेक्शन एक जो है वो इंटरनेट पे या मेन कैंपस के जो सर्वर्स होते हैं उनके साथ होते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी सिंपल डायग्राम। कि आपको ये डायग्राम जो है ये किसी तरीके से याद कर लेंगे कि देयर इज ए पर्सन and this person has a biosensor network and this biosensor network constitute what is called a body area network because it's an array of biosensors and we can send this information to the internet and we can also see this information of the home PC। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्प्ले करना चाहूँगा। हमने आपके प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है जो FYP ग्रुप में आपको फेस हो रही हैं उन पे हमने डिस्कशन की है और डिस्कशन के बाद हमने उसका एक सलूशन जो है वो इस फॉर्म में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट जो है इसका मैं एड्रेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वेबसाइट चूँकि अभी बनाई गई है, अभी इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता डाली जाएगी। तो इसमें जो है अगर आप देखें तो सबसे पहले एक जो सिस्टम है, एक जनरल सिस्टम जो है उसकी डिस्कशन की गई है कि इसमें सेंसर होता है, देयर मे बी मैनी सेंसर्स एंड देयर इज सम डेटा एक्विजिशन और डिस्प्ले हो सकती है LCD पे, यानी ये वो LCD है जो कि उस एम्बेडेड सिस्टम का हिस्सा है या उसके साथ आपने इंटरफेस की है। फिर प्रोसेसिंग हो सकती है, ये प्रोसेसिंग उसी सेम एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पे हो सकती है या अलग से भी की जा सकती है। इसमें विजुअलाइजेशन के लिए बड़ी LCD यानी जो नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन्स है या फिर कोई एक्चुएटर हो सकता है जिसको ऑन या ऑफ जैसे स्विच होता है, बेस्ड ऑन ए कंडीशन ऑफ ए सेंसर कैन बी ऑन और ऑफ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी डायग्राम है। डेवलपमेंट प्रोसेस है, किस तरीके से आप कोड लिखेंगे। पहले तो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक एल्गोरिदम बनाएंगे जो आमतौर पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में होगा और उस एल्गोरिदम को फिर कोडिंग की सूरत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यही मॉडुलर अप्रोच है और यही चीज़ें जो है वो की जाती हैं। पहली एग्जांपल में जिसमें एक जो टेम्परेचर सेंसर है उसको इंटरफेस किया गया है आर्डिनो यूनो के साथ और ये इसके स्टेप्स हैं और ये इसका रेफरेंस है जहाँ से ये लिया गया है। ये कोड बहुत सिंपल है। यही कोड जो है आप बगैर किसी चेंज के साथ बाकी जो सेंसर्स हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जो उसका जो प्री प्रोसेसिंग है, यानी ये तो टेम्परेचर है, उसकी डेटा शीट में ये लिखा हुआ था कि आपको ये स्टेप करना है। तो आमतौर पे आप डेटा शीट में जाएंगे तो आपको इतना कोड तो मिल जाएगा जो कि उस इंटरफेस आर्डिनो के साथ डायरेक्ट उसको इंटरफेस कर रहे हैं। ये आमतौर पे C लैंग्वेज का हिस्सा है। इसी तरीके से जब आप रास्पबेरी पाई को और आर्डिनो को आपस में इंटरफेस करेंगे तो सबसे सिंपल तरीका USB है। USB से आप उसको आपस में अटैच कर दें। जब आप USB से उनको अटैच कर देंगे तो उसके बाद आप एक जो सॉफ्टवेयर आपका रन हो रहा होगा आर्डिनो का, उसमें आपको एक
लूप के अंदर जो है वो जो इंफॉर्मेशन आप भेजना चाह रहे हैं रास्पबेरी पाई पे वो भेजनी होगी। और इसी तरीके से जो क्या नाम है, जो रास्पबेरी पाई है उस पर आपको वो चीज़ जो रीड करनी है रियल पोर्ट से, वो ये सिंपल कोड से आप, अच्छा इसका भी जो सोर्स है वो दे दिया, ये इसका सोर्स है, अगर आप देखें तो ज़्यादा डिटेल आपको फिर यहाँ से मिल जाए। वी कीप ऑन एडिंग दिस यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं चाहते कि यूएसबी के थ्रू इंटरफेस करें, क्योंकि यूएसबी के प्रोटोकॉल डिफरेंट होते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको 3 और 5 वोल्ट का जो लेवल शिफ्टर है उसके साथ आप इंटरफेस करें, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस जो वेबसाइट है यहाँ से मिल जाएगी। और बहुत आसान है वो, उसमें फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ डेटा को यानी ये केबल जो है इसकी बजाय आपको कनेक्टर्स जो है वो कनेक्शंस उनकी मदद से, यानी सर्किट की मदद से, यूएसबी का प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे आप फिर सिर्फ लॉजिक शिफ्टर जो है उसका प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि यूएसबी का जो प्रोटोकॉल है उसकी जो वोल्टेज लेवल ज़्यादा होने की वजह से इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो वो फिर जो जो कम पावर कंजम्पशन वाला सेटअप होगा आप वो चाहेंगे मेडिकल डिवाइस में। सिमिलरली वी हैव ए टैब फॉर डॉक्यूमेंटेशन हियर, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक जर्नी है। और आर्डिनो को हम एक डेटा एक्विजिशन यूनिट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडीसी होता है। रास्पबेरी पाई में हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं उनको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आर्डिनो को बार बार प्रोग्राम करना पड़ता है, इसके अंदर जो है वो लिमिटेशंस होती हैं, मेमोरी लिमिटेशंस, बड़ा प्रोग्राम इसमें फिट नहीं आता, तो इस और ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर इसके अंदर लगा होता है या वो माइक्रो कंट्रोलर बहुत लो स्पेसिफिकेशंस का होता है, जबकि रास्पबेरी पाई जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है। इसमें हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट के तौर पे, एक प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग का प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें जो है वो नोड 32 या ESP जो है उसको हम डालेंगे, ताकि जो इंटरनेट के साथ कनेक्शन है वो कैसे हम बनाएंगे उसके साथ, और फिर इस तरीके से उसका कोड डालेंगे। फिर आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एड्रेस करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें बताएंगे कि आपको प्रोग्रामिंग में ये एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे यूज़र इंटरफेस आपने बनाना है प्रोग्रामिंग का, तो रास्पबेरी पाई में जो पाइथन में एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होता है उसकी मदद से एक यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, जो कि आप एक बटन दबाएंगे तो वो चल पाएगा, एक बटन दबाएंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। ओके, आपके जो जूनियर बैच है वो उसका कोई अभी यहाँ तक पार्टिसिपेशन अभी तक है नहीं, आई डोंट नो कि वो कहीं एंगेज हैं या किसी और यहाँ तक इंफॉर्मेशन अभी तक क्यों वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। anyhow they will be also part of this क्या कहते हैं कोर्स जल्द ही। अब हम वापस चलते हैं, कोई सवाल है यहाँ पे आप लोगों का, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो? सर जी पूछें, बताएं। जी सर, मुझे आपसे एक चीज ये कंफर्म करनी थी कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसकी ये जो अटेंडेंस है ये मैंडेटरी है या नहीं? अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ, ताकि मुझे तो जी सर। कि क्या हो रहा है और इसका। सर ये हमने ये तो नहीं है कि HUS जो स्टूडेंट है वो फिर ऑनलाइन क्लास ही ना लें, फिर इसका फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करना है सेक्शन और डाल देना है उसमें, फिर मैं आप लोगों को तंग ही नहीं करूँगा, वो मेरे लिए भी फायदा। लेकिन बहरहाल इंटरेक्टिव सेशन में फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो अपने दूसरे क्लासमेट्स को अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप पूछें, अब बताएं आप। सर ये टेलीमेडिसिन का कोर्स रजिस्टर नहीं हो रहा था, तो हमने उस फॉर्म पे जो CMS पे उस पे भेज दिया है। बहुत अच्छा किया अ, आप लोगों ने, इंशाल्लाह इसका वर्कआउट करते हैं कि ऐसा क्यों है। मैंने कुछ कल भी मैसेजेस भेजे हैं जो आईटी की टीम है
अभी मैं इनको बता देता हूँ कि टेली मेडिसिन का कोर्स जो है ना स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आ रहा, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ी सी स्लाइड बाकी हैं, अब हम इसको कंप्लीट कर लें। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट लेना चाहूँगा कि ये हमारा एक दूसरा सेशन है, ताकि इसको भी मैं अपने पास सेव कर लूँ। दिस इज़ आवर सेशन 4 और थर्ड वीक में है, तो इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको अपलोड कर देंगे। असल में वीडियो जो है ना उसको थोड़ा हैंडल करने में इशू, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो उसको मैं फिर बाद में अपलोड करता हूँ। तो अब हम थोड़ा इस स्लाइड से आगे जाते हैं। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल। जब हम बात करेंगे ये रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी बहुत फेमस टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रोबोटिक सर्जरी का कोई टॉपिक या आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अगर हम टेलीमेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं किसी एक सॉफ्ट सर्जरी के पर्सपेक्टिव में, देन देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल। ऐसा ना हो कि जो है वो इंटरनेट अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए, जैसे आम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में होता है, डिसरप्शन हो। So there are the sensors, appropriate sensors, which are capable of capturing the movements of surgeon hand in real time with extreme precision. So it's a sensor should be very good and appropriate. सही सेंसर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि सेंसर्स जो है ना उनकी प्रिसीजन या उनकी मूवमेंट्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो। कैमरास की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज जो है वो पेशेंट को देखना, उसकी मूवमेंट्स को मॉनिटर करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि आमतौर पे नॉर्मल कैमरास से स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब जो है वो जो कैमरास हम यूज़ करते हैं रोबोटिक सर्जरी में, दे आर मेडिकल ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका वो हिस्सा होता है। ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि जो है वो जो मूवमेंट ऑफ सर्जिकल टूल्स जो है ना उनको किस तरीके से प्राइमरली मेंटेन रखा जाए। अब वहाँ ज़ाहिर है नाइफ होगा, सिरिंजेस होंगी और इस तरीके से डिफरेंट और जो है वो एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन होंगे। So the actuators that must exactly replicate the 3D hand movements, क्योंकि जो है वो ऑपरेशन 2D में तो नहीं हो रहा होगा, 3D में हो रहा होगा। आमतौर पे ये सोच रहे होंगे कि पेशेंट जो है वो जो एनेस्थीसिया है उसकी वजह से पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर 4D में मूव हो जाएगा। अगर वो मूव भी कर रहा है तो फिर 4D में, तो आमतौर पे 3D जो है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी। तो ये तो 3 रिक्वायरमेंट हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इट शुड बी रिलायबल, ताकि जो वीडियो कम्युनिकेशन है यानी जो डेटा की कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेटली कर सके। इसमें डेटा भी है, इसमें कंट्रोल भी है, तो एरर्स जो है ना, एरर फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये एक बड़ी कंडीशन है जिसकी ज़रूरत है जब हम एक रोबोटिक सर्जरी की बात करें, तो उसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मीट करनी ज़रूरी है। तो आम तौर पे होता ये है कि ये सेटअप जो है वो उसी सेम हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है, कि उसी हॉस्पिटल के एक तरफ जो है वो सर्जन है और उसकी टीम है, और दूसरी तरफ जो है पैरामेडिक्स हैं और पेशेंट हैं। तो उसी में एक रिलायबल नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है। और एक्सपेरिमेंटली जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंपल ऑपरेशंस हैं जो क्रिटिकल नहीं है, तो उसमें फिर इंटरनेट के थ्रू यानी किसी और सिटी से या दुनिया के किसी और हिस्से से वो आमतौर पर ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ट्रेनिंग। लेकिन इंशाल्लाह जब ये रिलायबल कम्युनिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी पॉइंट टू पॉइंट, यानी
जहाँ पेशेंट मौजूद है और जहाँ सर्जन मौजूद है उनके दरमियान, तो फिर क्रिटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो भी मुमकिन हो सकेंगे। पाकिस्तान में तो एक ही सेंटर हमें पता चला था कुछ अर्सा पहले रोबोटिक सर्जरी का, लेकिन ज़्यादा डिटेल हमें किसी ब्रोशर में नज़र नहीं आई। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल डेटा पैकेट। जो कम्युनिकेशन वायर पे होती है, यानी जो चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, उसको लॉजिकली अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है, अगरचे जो है वो कंप्लीटली हम उसको डेटा पैकेट कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, आमतौर पे अगर समझ लें कि ये भी एक मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पे भी हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो दोनों मोबाइल फ़ोन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, ऑब्वियसली रास्ते में टावर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल कम्युनिकेशन जो है वो इन दोनों मोबाइल फ़ोन के दरमियान हो रही है, क्योंकि यहाँ से एक पर्सन बोल रहा है, एक सुन रहा है, जब वो बोलता है तो फिर वो सुनता है। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कह सकते हैं कि ये सेंडर है और ये रिसीवर। तो इसका मतलब है कि वन वे कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो मूवमेंट ऑफ डेटा है, या जो समझे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनको लॉजिकली डेटा पैकेट्स में अरेंज किया जाता है। तो पैकेट जो है ये एक लॉजिकल वो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ बाइनरी डेटा है। और जबकि हमें पता है कि जो वायर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहना चाहिए, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कह रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, इनको अगर मीनिंगफुल वे में अरेंज किया जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये एक पैकेट है। किताब में आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। पैकेट के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे पैकेट का ये जो है ये पैकेट का एक हिस्सा है जो बताता है कि ये जो मैसेज है इसका कौन सा वर्जन है, यानी ये जो जो पैकेट है इसका वर्जन क्या है, ताकि उसके हिसाब से जो है ना वो डिफरेंट जो इसके अंदर डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइस, जो डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, जैसे ये तो मोबाइल डिवाइस है, और भी कई नेटवर्क डिवाइसेस आएंगे, उनको पता चल जाए कि उन्होंने प्राइमरीली इसके साथ करना क्या है। इसके बाद जो है ना वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड जो है इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी के फॉर्म में लिखा जाता है, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। अगर हम यूजर टीसीपी की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको इस वक्त हार्ड लगेंगी, लेकिन जब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे। जो हमारे पास टीसीपी है, इसमें ये दोनों जो एंटिटीज हैं इनके दरमियान में एक लिंक एस्टेब्लिश होता है, और ये जब लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कम्युनिकेशन होती है। यूडीपी जो है इसके अंदर जो है जो कम्युनिकेशन है ये इसमें मैं डैश लाइन लगा रहा हूँ, इसमें जो पाथ एस्टेब्लिश होता है वो पॉइंट टू पॉइंट पाथ नहीं होता, बल्कि यूँ समझिए कि जिस तरीके से पहले ज़माने में पोस्टल सर्विस होती थी और आज भी है कि लेटर पोस्ट कर देते हैं, और वो लेटर मुख्तलिफ जगहों से होता 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 वहाँ पहुँच जाता है जहाँ डेस्टिनेशन होती है, और वो कभी रेलगाड़ी पे सफ़र कर रहा है, कभी किसी पर्सन के पास है, कभी वो एरोप्लेन पे सफ़र कर रहा है। और जबकि टीसीपी जो है इसमें जो सेंडर और रिसीवर होता है उसके दरमियान पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसमें यूडीपी में कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, जैसे आपने ईमेल लिखी और भेज दी, जबकि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, पहले उसका नंबर डायल करते हैं, फिर एक बेल होती है, और बेल होने के बाद जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई और अब आपने बात कर ली। लेकिन यूडीपी में
आपने सिर्फ एड्रेस लिखा और भेज दिया, अब आपको नहीं पता वो वहाँ इंफॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची, और उसके बाद दूसरे बंदे ने भी भेजी तो वो फिर आप तक आ जाती है। तो ये जो व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करते हैं, ये यूडीपी की एग्जांपल है। यानी यूडीपी का वो मैसेज चला जाता है और वो मैसेज कभी तो इंस्टेंटली पहुंच जाता है, फौरन पहुंच जाता है, लेकिन कभी जो है वो मैसेज जो है फौरन नहीं पहुंचता, थोड़ी सी देर के बाद पहुंचता है। तो ये दो दो एग्जांपल्स हो गए। तो रियल टाइम में टीसीपी इस्तेमाल करते हैं, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रियल टाइम में वॉइस होती है, रियल टाइम में रोबोटिक सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, और इसी तरीके से जो मेडिकल डिफरेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है वो भी आमतौर पे रियल टाइम। लेकिन इसके बावजूद यूडीपी जो है, चूंकि इसका ओवरहेड कम होता है, इसमें आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना, लिहाजा कुछ एप्लीकेशन में यूडीपी यूज करते हैं, और यूडीपी की जो रिलायबिलिटी है उसको इंश्योर करने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जो कि टेक्निकल डिटेल्स मांगते हैं। तो ये दो चीजें हो गई अभी तक हमने जो इस पैकेट के हवाले से पढ़ी है। एक चीज ये कि एक वर्जन होता है, आमतौर पे 4 या 6 लिखा होता है यहाँ पे, तो 4 और 6 से पता चल जाता है कि ये जो दरमियान में डिफरेंट डिवाइसेस है वो इस पैकेट के साथ करेंगी क्या। और ये जो दूसरा जो इसका फील्ड है ये बताता है कि जो कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, क्या कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है। यानी कनेक्शन लेस से मुराद क्या है, यानी ये मुख्तलिफ पाथ से गुजरता हुआ जाएगा, या एक पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा फिर वही पाथ यूज होगा। तो आमतौर पे ये दो जो है ये सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, और उसके बाद डेटा होता है। डेटा हमें पता है क्या होता है, ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, एक सीक्वेंस होती है 11000010, 2 तो नहीं आएगा इसमें क्योंकि बाइनरी है ना, तो 011। तो इस तरीके से ये डेटा होगा, और ये डेटा फिर पहुंच जाता है आहिस्ता आहिस्ता रिसीवर तक, और रिसीवर फिर उस डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कि हम एज ए ह्यूमन उसको सीख समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है जो इस वक्त हमें यहाँ पे इस तरफ नज़र आ रही है, इसको भी समझना ज़रूरी है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो यही 3 पार्ट है, 3 हिस्से हैं जिनको हम आमतौर पे इस कोर्स में जो है वो पढ़ते हैं। अगरचे इसके और भी हिस्से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि टोटल इसकी लेंथ, इस पैकेट का साइज कितना होगा, और इस वर्जन के अलावा एक चीज कहलाती है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप क्या होगी, लेंथ पैकेट के अंदर भी लिखी होती है, लेंथ क्या होगी, क्या इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन कौन से फ्लैग्स यानी यूज होंगे इसमें, फ्रेगमेंटेशन क्या है, यानी ये डेटा पैकेट एक से ज्यादा डेटा पैकेट है या एक ही डेटा पैकेट आ रहा है, फिर कहाँ से आ रहा है, इसका एड्रेस क्या है, जाएगा कहाँ पे, क्या इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि देर आर इन ए आईपी पैकेट, ये आईपी पैकेट कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी जो इंटरनेट पे जो रूल्स यूज होते हैं, इंटरनेट पे जो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं उनको आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सो दिस प्रोटोकॉल्स, this protocol has 3 fields, 3 famous fields. There are many, but only one field relate with the version of that data packet, IP packet, and the service type of that primarily packet, जो कि यहाँ भी सर्विस टाइप है TCP और UDP, कॉमन TCP और UDP, एंड देन द डेटा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमें अब पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको हम किस तरीके से जो है वो लॉजिकल एक अरेंजमेंट में यानी पैकेट की फॉर्म में देखते हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। एक तो डेटा है ही, आपने हेलो बोला यहाँ पे, तो वो हेलो यहाँ पे सुना जाना चाहिए, और वो हेलो जो है वो वॉइस में है, वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा।
और वो जो सेंडर है वो कहेगा कि ये मैं भेज रहा हूँ, इसको भेजो, ये रिसीवर है, तो ये उसके एड्रेस होंगे। फिर वो उसको क्या कहते हैं बताएगा कि ये किस सर्विस से जा रहा है, ये रियल टाइम सर्विस है या आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूडीपी सर्विस है उसके थ्रू जा रहा है। तो इसी तरीके से फिर ये कम्युनिकेशन होगी। मैसेज होगा, यानी मैसेजिंग जो है, मैंने बताया आपको कि मैसेजिंग जो है वो आमतौर पे मैसेजिंग जो है वो यूडीपी और जो रियल टाइम सर्विसेज है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, इसको यूज करते हैं। अब मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ कि आज हम इस वन को कंप्लीट कर लें। ओके, द स्पॉटेड एरियाज, ये अब हमारे पास स्लाइड नंबर 23 है। सो कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन सपोर्ट टेलीमेडिसिन इन मैनी एरियाज, और वो थोड़े से जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, रिलायबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ सर्विस अश्योरेंस, बाज़ दफ़ा आपको जो है वो इंश्योर करना होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है दूसरी जगह पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से और बातचीत बाई डायरेक्शनल है, तो आप उसी वक्त वो बातचीत समझ सकते हैं जब वो इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचे। अभी अगर आपने देखा होगा कभी कभी व्हाट्सएप पे या जूमिंग सेशन पे ऐसा होता है कि आवाज़ जो है वो बहुत रुक 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 के आनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसी कम्युनिकेशन होगी तो वो फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसको वायलेट कर रही है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू मेडिकल वेब पेजेस ऑनलाइन, ये तो खैर एक एग्जांपल है। ऑडियो टेली कंसल्टिंग, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, cardiac and pulmonary sounds, different type of sounds, and the images, x-rays, ct scan, other type of medical images, for example ultrasounds. There are also video images which are nothing but a subset, but a large collection of still images. They are teleconferencing, telephysio, psychiatry, and medical education. Databases, the patient database, the pharmacy database, and there is also an alternative medicine. देखिए जो हर्बल मेडिसिन है, जो होम्योपैथिक है, और इस तरीके से जो एक्यूपंक्चर है, दे आर आल्सो मेडिकल सर्विसेज, और over the period of time they also become famous, and also they are using the technology for their customer base. ये चीज़ भी हमें समझने की जरूरत है। एंड देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसमें डॉक्टर जो है वो दवाई के साथ साथ खुराक, और खुराक के साथ साथ एक्सरसाइज भी तजवीज़, और इन्वायरमेंट तजवीज़ करता है। देन देयर आर वाइटल साइन मॉनिटर्स। मेरी विश होगी कि अगर कोई जो है वो आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो एक वाइटल साइन मॉनिटर जो है वो हम अपने तौर पे यहाँ बना सके, जो एमरजेंसीज में यूज़ होता है। दैट विल बी ए गुड प्रोजेक्ट, but it requires some operational theater type environment. It's a nice project इंशाल्लाह, ये हमारे जहन में बहुत अरसे से है, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसको हम जो है। Okay, so then there are some quizzes and there are some assignments. This assignment is primarily related with chapter 9 and the text with the chapter 9. You have to read a few paragraphs and sections. So explain the use of the clothing technology, because clothing technology is very famous, at least in show business, but also it is widely used in healthcare as well. So our example should be in healthcare, remember. So identify the benefits of the clothing technology that can be realized in Pakistan. देखिए clothing technology जो कि expensive है, we cannot do everything जो कि किताब में लिखी है, but we can still found some useful applications of the clothing technology in Pakistan. Secondly, the outline the challenges associated with the clothing technologies, ये उसने किताब में अच्छे तरीके से explain किया हुआ है. And you people are working in the groups of 2 and 3 to make this assignment. ठीक है, और एक बंदा जमा करवाएगा। लास्ट टाइम आप लोग कुछ मैंने देखा था कि वो many members are submitting, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन जमा करवाएगा।
तो ग्रुप्स की आप एक सीआर से रिक्वेस्ट होगी कि एक ग्रुपिंग कर लें, 2 to 3 स्टूडेंट्स पर ग्रुप. Okay, explain the function of glucose wristband. Glucose wristband, blood glucose monitoring के लिए. Explain the importance of calibration in measuring the blood glucose level. एक जनरलाइज ग्लूकोज रिस्ट बैंड जो है ना, उसको बनाना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है. देयर इज सम कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज आल्सो सम टाइमलाइन कि उसमें ग्लूकोज रिस्ट बैंड को या तो चेंज करना है या फिर कैलिब्रेट करना है. रिकैलिब्रेशन इज अ मस्ट. ओके, यहाँ पे हम आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि 2 सेशंस की रिकॉर्डिंग हमारे पास हो चुकी है. देयर आर few more sessions जो मुझे रिकॉर्ड करने हैं आप लोगों के लिए, but in this week I will try my best to at least record one session for you guys based on some